Good morning, students. In my previous video, we have discussed microscope. One simple microscope, another compound microscope. In compound microscope, we have discussed when final image is formed at least distance of distinct vision. Now, this one case is left, that was normal adjustment. What is a normal adjustment? It means when final image is formed at infinity. So, when you have to draw the diagram for this compound microscope, first of all, we require two things. That one, we require one objective lens and another is eyepiece, eye lens. And the distance between these two can be arranged by rack and pinion arrangement. So, first of all, I have drawn this principal axis and now I am drawing this lens 1, L1. This is objective lens. As first part of the diagram will be same as we have done in the previous video. That means here you will consider that object AB, we are placing it on the principal axis such that let its optical center is represented by C1 or C, anything you can take. One ray parallel to principal axis that will pass through the focus point. So here let its focus point is here, F0 here. So if this is F0, again you can take like this much distance you will take from here, that this is also F0. So now it will pass through the focus point. Another ray of light we are representing that it is passing through the optical center. So here you are taking like this. So another ray is following this path. Now you can see here these two rays are meeting at a common point where we are getting the real inverted image. That this image formed is denoted by a symbol B dash, A dash. Now if you compare it with the previous diagram, you can see this diagram is identical with that of the previous case which we have discussed. अब सेकेंड पार्ट क्या करना है? सेकेंड पार्ट में हमें लेंस बनाते हुए ध्यान रखना है that it will have large focal length and large aperture. Second point, that final image will be formed at infinity. तो आपको पहले ये सोचना है final image infinity पर कब बनती है? Obviously when object is placed at the focus point of the lens. तो it means जब हम दूसरा लेंस लेंगे वो इस तरीके से दिखाएंगे so that बनाते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि दैट मीन्स इसकी लेंथ इतनी तो हो ताकि ये इमेज से कॉरेस्पॉन्डिंग रे इस पे स्ट्राइक कर सके. नाउ दिस इज लेंस L2 एंड दिस इज आई लेंस, आई पीस. नाउ हियर यू कैन सी लाइक दिस सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर C2. अब ये जो पॉइंट होगा दिस इज इट्स फोकस पॉइंट ऑफ आई लेंस, आई पीस. नाउ व्हाट विल हैपन? One ray parallel to principal axis will pass through the focus point and another ray will pass through optical center and these two rays will be parallel to each other. Again this distance should be same, like the point will be exactly when you will draw with the scale and measurement with the pencil scale you can get the exact data. अब देखिए वन रे कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से. एंड अनदर रे, देखिए वैसे तो आप बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये रे फोकस से पास हो रही है, लेकिन ये आपके लिए शॉर्टकट है एज ए स्टूडेंट कि क्या गड़बड़ होती है कि जब आप इसे बनाते हैं तो ये रे ऐसे सेपरेट कर देते हो. आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्केल से इसे मिला रहे हैं तो इस केस में ये रे इसके पैरेलल ही आनी चाहिए. यानी पॉइंट का जो डिस्टेंस आप लेते हैं, जब ये जो डिस्टेंस लेते हैं इट शुड बी एक्यूरेट. अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में ये रे पैरेलल नहीं आएगी. देयर मे बी द चांस कि डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो इस केस में आप देख रहे हैं दीज टू रेज विल बी पैरेलल एंड द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. सो दिस इज द डायग्राम. आई एम रिपीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव लेंस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? दैट इज after focus point, so that real inverted image will be formed at A dash B dash. Then when it is placed in front of this eyepiece, then the rays will become parallel to each other after passing through the lens. अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिक पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर. अब हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम में दो लेंसेज हैं तो फॉर दीज टू लेंसेज
formula for total linear magnification here, this will be m naught into me. एज मैग्नीफिकेशन में हमने कहा था कि अगर हमारे पास सिस्टम में बहुत सारे लेंसेज हों तो उनकी मैग्नीफाइंग पावर ऐड हो जाती है. सो एम नॉट इंटू एम ई. अब देखिए एम नॉट किसकी पावर है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एम ई इज दैट फॉर द आई पीस. अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा. सबसे पहले देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस की फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, सी इन द फिगर, सी इन दिस पार्ट. देखिए अगर ये डिस्टेंस आप ले रहे हैं यू नॉट है, तो यहाँ जहाँ इमेज बन रही है ये पूरा डिस्टेंस कितना है, वी नॉट. अब वी नॉट का मेजरमेंट पॉजिटिव होगा और यू नॉट का मेजरमेंट नेगेटिव होगा एज पर द साइन कन्वेंशन, राइट. नाउ दिस इज वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट and magnifying power of this eyepiece, this will be equal to d by fe. इसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब आपने सिंपल माइक्रोस्कोप का केस किया था, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती हुई थी, तब उस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आया था, d by fe. तो वो रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं जिससे हमारा रिजल्ट आ रहा है दिस me इज d by fe. सो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट डी बाय एफ ई. अब हम कन्वेंशनली लेते हैं, मान लो अगर हम ये कहते हैं कि जो ये हमारा डिस्टेंस है, यानी ये जो पॉइंट हमने लिया है जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड है, दैट मीन्स इफ इट्स फोकल लेंथ दैट मीन्स इट इज टेकन टू बी. अगर हम ये कंसीडर करें कि ये जो डिस्टेंस वी नॉट है ऑलमोस्ट दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ आई लेंस, दैट मीन्स इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप, और अगर इस मेजरमेंट को हम नेग्लिजिबली स्मॉल ले लें तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस ट्यूब. दैट मीन्स दिस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज ओनली अंडर एजम्पशंस. अगर हम कहते हैं कि इस केस में इसकी फोकस पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वेरी क्लोज टू दिस आई लेंस, इन दैट केस वी कैन रिप्लेस वी नॉट बाय एल ओनली अंडर द कंडीशन दैट वी आर इग्नोरिंग दिस डिस्टेंस. तब उस केस में हम इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं L बाय यू नॉट, ओनली मैग्नीट्यूड इफ वी टेक, अदरवाइज नेगेटिव साइन भी रहेगा इसमें, राइट. सो बेसिक फॉर्मूला इज दिस वन एंड अप्रॉक्सीमेटली जब हम लेंथ की टर्म्स में लिखते हैं देन इट कैन बी दिस वन. एंड व्हाट अबाउट यू नॉट. अब अगर हमने जैसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में कहा था कि ये पॉइंट एफ नॉट से नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्टेंस पे है, तो अगर मान लो एक्चुअली देखिए इन पॉइंट्स को हम फिजिकल चेंज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट एफ नॉट से थोड़े ही डिस्टेंस पे है, तो हम इस डिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ऐसे ही एफ ई पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाए या बिल्कुल क्लोज हो जाए, ये मतलब नहीं है इसका. इसका मतलब ये है कि हम इस मेजरमेंट को इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल कह रहे हैं. इसी तरीके से यू नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज लाई जस्ट वेरी क्लोज टू फोकस पॉइंट. तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में हम यू नॉट को भी रिप्लेस कर देंगे एफ नॉट से, जैसे हमने वी नॉट को रिप्लेस किया एल से. तो मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा एल बाय एफ नॉट डी बाय एफ ई. दिस इज जस्ट वन स्पेशल केस व्हेन वी आर इग्नोरिंग सर्टेन डेटा. एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब of the telescope of this microscope in normal adjustment condition? This will be V naught plus UE. You can see here proper अगर हम कहें ये this is the distance between these two, तो यहाँ से ये वाला measurement distance V naught है और ये actually क्या है UE है, या जिसे हम कह लें FE कह लें. That means length of the tube equal to V naught plus FE or plus UE. So therefore from here you can calculate the value of length of tube also. So that's all for compound microscope in normal adjustment. ये हम डायरेक्टली नहीं शुरू करते, हम इस पॉइंट को सिर्फ इसी पॉइंट से करते हैं. देखिए जब हम माइक्रोस्कोप्स का केस लेते हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल्स तो फॉर्मूला बेस्ड रहते ही हैं. यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज डायरेक्टली. अपार्ट फ्रॉम इट जो हम इसके डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ये डायग्राम बहुत अच्छे से करना है, इनकी लेबलिंग प्रॉपर करनी है. एरो शुड नॉट बी फॉरगॉटन. अगर एरो भूल जाते हैं, लेबलिंग भूल जाते हैं तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ज़्यादातर इसमें डेरिवेशन पॉइंट के अलावा डायग्राम, लेबलिंग एंड मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाता है. सो गिव इट अ राइटिंग प्रैक्टिस
for diagram as well as for the all the steps we are solving. After this, next topic we are taking, this is telescope. Telescope type which we are using, that is astronomical telescope. So one basic question can be between microscope and telescope. Microscope का पर्पस क्या होता है? That we can see magnified view of the object with the help of microscope, whereas telescope is an instrument which is used to observe distinct object, far away object, that is heavenly objects. If you want to see stars, planets, then this astronomical telescope is used. Now again, for this telescope also we will discuss image formation, final image formation under two conditions. One, final image formed at infinity. Another case when final image is formed at least distance of distinct laser. तो सबसे पहले हम इसमें केस लेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at infinity. अब इसमें मेन पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑपोजिट है. पहला डिफरेंस तो हो गया इनका पर्पस, हमें माइक्रोस्कोप क्या है और टेलीस्कोप क्या है, इन दोनों का क्या पर्पस. दूसरा है कंस्ट्रक्शन पार्ट में ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो हम यूज करते हैं, आई लेंस जो हम यूज कर रहे हैं, उनके डायमेंशंस, उनके साइजेस का डिफरेंस. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ शॉर्ट अपर्चर एंड फोकल लेंथ, वेयर एज आई लेंस इज हैविंग लार्ज अपर्चर एंड मॉडरेट फोकल लेंथ. अब यहाँ इसका रिवर्स रहेगा. In this case, objective lens we are using that will be of large focal length and aperture, and eye lens will be of short focal length. Now, in compound microscope, we place the object on the principal axis, but in telescope, as it is used to observe distinct object, यानी heavenly object, it means rays कहाँ से आएंगी? Infinity से. Object is not placed on the principal axis. तो देखिए अब इसका हमें जब डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग हेयर टू लेंसेज. तो एक लेंस हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एंड अपर्चर इज मोर एज कंपेयर टू आई लेंस. लेट इट बी ऑब्जेक्टिव लेंस, इट्स ऑप्टिकल सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय C1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम ये कहते हैं कि रेज हेवनली ऑब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटी से आ रही है. तो वी आर रिप्रेजेंटिंग लेट वन रे विल गो स्ट्रेट passing through the optical center, another ray that is passing through the lens suffering refractions and they may meet at a point. You can represent two rays or more rays, minimum two rays are required for formation of image. Here I am just showing you three rays. अब इसमें एक चीज इनकम्प्लीट है. व्हाट इज दैट? एरो. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एरो मस्ट बी देयर, अदरवाइज यू विल लूज हाफ मार्क फॉर इट. यहाँ से अभी देखिए तीनों रेज किसी कॉमन पॉइंट पर मीट की हैं, यानी कहाँ मिलेंगी. ये अब केस ध्यान रखिए कि अगर हम कहें कि कॉन्वेक्स लेंस में रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी मीट करती हैं वो क्या होता है? फोकस पॉइंट. यानी दिस इज focus point of objective lens, right? Now, अब सेकेंड लेंस ड्रॉ करेंगे. कभी भी ये प्रेफर नहीं करेंगे हम कि हम दोनों लेंस को इकट्ठा बना दें, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक के चांसेस रहते हैं. तो आई प्रेफर नाउ आई विल ड्रॉ द सेकेंड लेंस. दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है. तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि सेकेंड लेंस को हमें कैसे प्लेस करना है. सेकेंड लेंस को हमें ऐसे प्लेस करना है कि ये जो आपके पास एक इमेज बनी है दैट इट बी A', B', ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा. और ये कहाँ प्लेस होना चाहिए? ये सेकेंड लेंस आई लेंस के फोकस पॉइंट पर प्लेस होना चाहिए. तो सेकेंड लेंस जो मैं कंसीडर करूंगी यहाँ पे ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ एंड अपर्चर, दिस इज आई लेंस एंड इट्स फोकस पॉइंट विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. यानी रैक एंड पिन अरेंजमेंट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एडजस्ट करते हैं एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस एंड इट इज प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट ऑफ दिस आई लेंस. नेक्स्ट स्टेप, one ray we will draw that is parallel to principal axis, another will pass through the optical center. अब इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ रे passing through optical center.
and then parallel to it at this point when I will draw a ray, it will pass through the focus point. देखिए जब हम डायग्राम को इस तरीके से बनाते हैं, डायग्राम तो हम हमेशा कैसे भी बना सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स की मिस्टेक कहाँ होती है, वो पहले इसको बनाते हैं फिर इसको बनाते हैं, तो हो सकता है ये डिस्टेंस को आप ध्यान ना दें। तो ये एक इजी वे आउट होता है कि पहले आप रे बनाइए ऑप्टिकल सेंटर से, फिर उसके पैरेलल आप रे बनाइए स्केल की हेल्प से, सो दैट की रे बिल्कुल जैसे हमने ये बनाई है इसी के पैरेलल हमने ये रे ड्रॉ की है, दैट मीन्स दीज टू रेज आर पैरेलल। तो उसमें चांसेस नहीं होता कि ये आगे कहीं से पॉइंट पर इनका सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ता नजर आएगा। तो एंड यू कैन से दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सो दीज आर द स्टेप्स। डायग्राम बनाते टाइम हमें इसी तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी चांस ऑफ मिस्टेक। सो गिव इट अ राइटिंग प्रैक्टिस। अब इसमें देखिए ये फाइनल इमेज क्या बन रही है, इन्फिनिटी पर। ये हमारा डायग्राम पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। जब आपको डायग्राम बनाना है तो स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, कंजस्टेड में नहीं बनाना है, तभी मैंने भी शीट को टिल्ट किया हुआ है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगेन इसको हम किसकी टर्म्स में डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ एंगल की टर्म्स में। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन दिस नॉर्मल एडजस्टमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल subtended at the eye by final image to the angle subtended at the eye by object when seen directly। सीन डायरेक्टली मतलब जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखते हैं तो ये जो एंगल बनाता है, दैट मीन्स मान लो मैं इस एंगल को क्या लूँ, ये एंगल हो गया अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया, और फाइनल इमेज क्या एंगल बना रहे हैं, बीटा। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन दैट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। एंगल यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो रे एंगल बना रही है एक्सिस के साथ वही एंगल है, तभी हम कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली। यानी यहाँ मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल है, दिस इज बीटा अपॉन अल्फा। दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसको, और मैग्नीफाइंग पावर भी यूज करते हैं। अगेन वी विल डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट बीटा एंड अल्फा। Although angles alpha and beta are taken to be very small, so we will ignore this tangent function. अब देखिए इस पार्ट में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बेसिक पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि हम ट्राइंगल कौन कौन से कंसीडर करेंगे। तो हमारा बीटा एंगल यहाँ बन रहा है और ये आपके पास इमेज है, तो ए डैश बी डैश सी टू ट्राइंगल लेंगे टेंजेंट बीटा के लिए, और ए डैश बी डैश अल्फा लेंगे हम टेंजेंट अल्फा के लिए। तो ए डैश बी डैश सी वन लेंगे टेंजेंट अल्फा के लिए। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू। इसमें देखिए टेंजेंट बीटा, फिगर देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग टेंजेंट बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस, राइट। तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। अब इसी तरीके से इन ट्राइंगल हम प्रेफर करेंगे ए डैश बी डैश सी वन। तो यहाँ टेंजेंट अल्फा चेक कीजिए डायग्राम में क्या आएगा, दिस विल बी ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश, राइट। ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश। सो मैग्नीफाइंग पावर में जब हम दोनों वैल्यूज को यूज करते हैं तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है कि ए डैश बी डैश कॉमन टर्म है। सो हेयर ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश, देन सी वन बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, कैंसिल, क्या बचा, सी वन बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। अब सी वन बी डैश देखिए, सी वन बी डैश ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ नॉट, और दूसरा सी टू बी डैश ये क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ई। यानी ये फोकस पॉइंट है दोनों का, तो ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसका मतलब ये जो आपके पास मेजरमेंट हुआ सी वन बी डैश, सी वन बी डैश क्या हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेंशनली इट इज़ टू द राइट ऑफ द लेंस, ये हो जाएगा आपके पास एफ नॉट। जबकि सी टू बी डैश वो एफ ई है, लेकिन
आई लेंस के लिए दैट इज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके लेफ्ट में है मेजरमेंट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, तो यहाँ ये डिस्टेंस मेजरमेंट नेगेटिव हो जाएगा. सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, एफ नॉट अपॉन माइनस एफ ई. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर magnifying power when final image is formed at infinity. What is the significance of negative sign? Negative sign indicate that image formed is inverted. Inverted image will be formed. Now, to increase the magnifying power of this astronomical telescope, normal adjustment. क्या करना चाहिए अगर हमें m को increase करना है? सो यहाँ देखिए m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को हमें इंक्रीज करना चाहिए. इट शुड बी लार्ज. एंड आई लेंस की फोकल लेंथ को, आई पीस की फोकल लेंथ को हमें कम लेना चाहिए क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यही हमने इसके डायग्राम में बताया है, यही हमने इसके मेन पॉइंट डिस्कस की है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मोर एंड आई लेंस शुड बी स्मॉल टू हैव लार्जर मैग्नीफाइंग पावर. व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ टेलीस्कोप? अब देखिए टेलीस्कोप की लेंथ क्या होगी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस. तो यहाँ देखिए ये लेंथ टोटल किसके इक्वल है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, एफ नॉट प्लस एफ ई. तो यहाँ हम लेंगे एल विल बी इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई. डायरेक्टली आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में. So this is all about astronomical telescope in normal adjustment. First of all, draw the diagram properly, define it. Then this is the mathematical step. Again, the steps are quite simple and giving you the similar kind of information. So you have to learn this result. This one as well as this one. Now next case we are discussing astronomical telescope when final image is formed at least distance of distinct vision. Again we require two lenses. One is objective lens and another is eye lens. Further rays will be coming from infinity. They will meet at any point. Let its optical center is C1. So ये one ray, let it is going straight from the optical center. Another ray parallel to it, ray should be parallel. Another parallel ray pass through it. We are showing here only 3 rays. Multiple rays can be meeting at a point. So they intersect at a common point. हम सिर्फ एक रफ एस्टिमेट लेते हैं. The rays are suffering refraction. Arrow should also be drawn. तो यहाँ जो आपके पास ये पॉइंट ऑब्टेन हुआ, this is giving you inverted real image. Now अब हमें दिखाना है यहाँ पर आई लेंस. जब आई लेंस वी हैव टू शो, सो दैट इज हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस. Another point is, this point is focus point of objective lens. अब हमें ध्यान रखना है कि जब फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रीच होगा आई लेंस का और कहाँ लाई करेगा, इट मस्ट लाई बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस. तो इसका मतलब जो हम आई लेंस यूज कर रहे हैं L2 आई लेंस, उस केस में वन रे इट विल pass through the optical center and another ray which is, देखिए अब हमें ये आपके लिए मैं एक पॉइंट बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट नहीं बताया, तो यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए. ज़्यादा होगा तभी ये दोनों रेज मीट कर पाएंगी. तो यहाँ हम कहें कि फोकस पॉइंट यानी ये दोनों रेज मीट नहीं करनी चाहिए. यहाँ पर कहाँ मीट करनी चाहिए, कहीं पीछे मीट करनी चाहिए. तो अगर हम इसको लेके चल रहे हैं कि ये एक रे है और दूसरी रे, यानी ये जो पैरेलल रे है ये बेसिकली इस फोकस पॉइंट से पास कर रही है, यानी ये फोकस पॉइंट हो गया आई लेंस का, यानी ये डिस्टेंस हुआ तो इसके कंपैरेटिवली ये वाला डिस्टेंस एफ ई पॉइंट यहाँ लाई करेगा. देखिए वही बात है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जहाँ डायग्राम बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि फोकस पॉइंट ऑफ दिस आई लेंस
मस्ट बी लाई ऑन दिस साइड। ये जो डिस्टेंस है दोनों तरफ इक्वल होता है। अब ड्रॉ करते टाइम हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं कि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये रेज का बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। अब रेज जब हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ये डॉटेड लाइन से, और सेकेंड पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। ये देखिए दोनों किसी कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। दिस इज A डबल डैश B डबल डैश। So this is the diagram. So here the rays are meeting at this point. This is becoming real inverted image for this. But now this is acting as virtual object for this lens. अब इस केस में जब ये ऑब्जेक्ट इसका एक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर इमेज सेम साइड पर बनेगी। और ये कहाँ बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। So this is all about our diagram part. Next part what is left, to define magnifying power. अब देखिए मैग्निफिकेशन पावर फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज अगेन द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई। डेफिनेशन सेम फॉर्मेट पे है, बस ध्यान से रखिए। एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज। बट फाइनल इमेज कहाँ होनी चाहिए, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बाय द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी ये जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल हो गया बीटा, to the angle subtended at the eye by the object at infinity. Yani when we are observing it directly, when seen directly, but the object is at infinity, तो यानी ये जो एंगल बना रहा है, this angle is alpha. This all is alpha. I am repeating the statement that it is defined as the ratio of angles subtended by final image at least distance of distinct vision at the eye to the angle subtended at the eye by the object when seen directly, whereas object is situated at infinity. So ये क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लेंगे टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब देखिए, now what should be the next step? Steps are all identical. We will find the value of tangent alpha and beta. तो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल A डैश B डैश C2। अब A डैश B डैश C2 ट्राइंगल में ये कौन सा एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज बीटा। तो टेंजेंट बीटा क्या होगा, A डैश B डैश, यू कैन सी हियर A डैश B डैश अपॉन C2 B, दिस इज C2B डैश। अब ऐसे ही अब अगर आप ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, अब देखिए हमें अल्फा एंगल वाली ट्राइंगल चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर एंगल अल्फा कौन सी साइड लग रहा है, A डैश B डैश C1, यानी ये ट्राइंगल कंसीडर करें, इन ट्राइंगल A डैश B डैश C1, जिसमें टेंजेंट अल्फा होगा A डैश B डैश अपॉन दिस इज C1B डैश। अगेन यू कैन सी इन द फिगर, हमने ये वाली ट्राइंगल ली है, हमने ये वाली नहीं ली है, क्योंकि दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। इसीलिए पर्पस क्या है कि अगर दोनों ट्राइंगल में A डैश B डैश कॉमन होगी, देन इट विल बी कैंसल्ड आउट इन द कैलकुलेशंस। तो देखिए व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर टेंजेंट बीटा और अल्फा निकाल लिया, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। So it will be A dash B dash upon C2B dash, then C1B dash upon A dash B dash, A dash B dash कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा C1B dash upon C2B dash। अब देखिए डायग्राम में, what is C1B dash? C1B dash, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बेसिकली किसके इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वल डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के C1B डैश। अब बचा C2B डैश, C2B डैश ये क्या इक्वल है, ये किस चीज़ के इक्वल है, क्या मेजरमेंट देगा, फोकस पॉइंट तो ये नहीं है, ये क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम, ये हम लेंगे इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस से। सो इट इज UP। अब कन्वेंशन लगाइए, कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली F0 पॉजिटिव रहेगा, जबकि UE क्या होगा, इस लेंस के लेफ्ट में है, यानी इट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट विल बी नेगेटिव। तो M की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, M विल बी टेकन एज F0 अपॉन माइनस UE। यहाँ तक क्लियर है।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें ध्यान से करना है, सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ निकाला। अब इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए अब हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE, ठीक है। माइनस 1/UE, यहाँ देखिए ये माइनस 1/UE है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/UE 1/FE माइनस 1/VE, राइट। अब VE, V फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी VE की वैल्यू क्या होगी, माइनस टी, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगी, तो यहाँ लिखेंगे 1/FE माइनस 1/G, सो इट इज़ 1/FE प्लस 1/G, यानी माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE 1 प्लस FE अपॉन D, यानी हमने यहाँ क्या किया, इस स्टेप में 1/FE कॉमन लिया तो इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए, अब ये माइनस 1/UE की वैल्यू निकाला, अब हम इसको इस स्टेप में पुट करेंगे, कैसे, m विल बी इक्वल टू F0 बाय माइनस UE, तो माइनस 1/UE की वैल्यू पुट किया, F0 बाय FE, नेगेटिव साइन यहीं यूज हो गया, 1 प्लस FE बाय G। So this is the magnifying power of astronomical telescope when final image is formed at least distance of distinct vision, यानी this is you have to learn it as such। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या था, दैट वाज F0 अपॉन माइनस F। अब इस केस में अब अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है, इफ वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट शुड वी डू, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी लार्ज। अब देखिए, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को हमें डिक्रीज करना होगा, यानी ये फैक्टर बढ़ेगा और ये फैक्टर कम होगा, तब हमारे पास मॉडरेट लेवल पर मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंडली, aperture of this objective lens should also be taken to be large. So by this way, magnifying power of astronomical telescope can be increased. Now, there is one point. Suppose on an astronomical telescope, if we are taking that if a parrot were sitting on the objective of a large telescope, telescope है और उसके objective lens की तरफ उसके ऊपर एक parrot बैठ जाता है, तो what will happen? We are taking the image of distinct heavenly object. We are taking a photograph with the help of that. So what will happen? Parrot will not be seen. वहाँ हमें उस टेलीस्कोप से पैरेट नहीं दिखेगा, क्योंकि टेलीस्कोप का पर्पस क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सो उस केस में हाँ ये तो ज़रूर होगा, पैरेट विल नॉट बी सीन बट ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस्ड। So when any obstacle, any object is sitting on the objective, so in that particular case, brightness of the image of distinct object we are getting, that will decrease. So this is all that we have covered today. Here we have discussed basic concept, basic image formation for compound microscope and 2 cases for astronomical telescope. So now just revise the topics very carefully, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में कोई डायग्राम ज़रूर आ जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लर्न द फॉर्मूलाज, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूलाज हर इंडिविजुअल केस का अच्छे से लर्न कीजिए, इन्हें अलग से शीट पर लिखिए, ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम, कॉन्सेप्चुअल अप्लाई करते टाइम इन फॉर्मूलाज को आप डायरेक्टली रिटेन कर पाएँ। ये जो फॉर्मूला है इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप कंफ्यूज कर जाते हो। यहाँ पर 1 प्लस FE अपॉन D है, रिटेन इट इन द माइंड, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, 1 प्लस D बाय FE, तो वहाँ इसका रिवर्स होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस फॉर्मूला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।